दोस्तों, हमने पिछले दो कड़ियों में धर्म का सच जानने का प्रयास किया। एक में हमें बताया गया कि अच्छे कर्म करना और दूसरे जो लोग नीडी हैं उनकी मदद करना वही धर्म है। तो दूसरे एपिसोड में हमें बताया गया कि अंदर की बेचैनी को शांत करने का नाम ही धर्म है। और आज जो हम इस तीसरी कड़ी में चर्चा करेंगे परम आदरणीय गौरांग प्रभु जी से, मुझे उनसे बात करते हुए समझ में आता है कि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और पूर्ण तरह से समर्पण ही धर्म है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात को सुनकर उसमें समझेंगे, विश्वास करेंगे, लेकिन मित्रों हमारा प्रयास यही है कि हर तरह के विद्वानों से हम बात समझें और आप तक पहुंचाएं, और फिर आपका अंदर का जो विवेक है वो जिस बात को समझ के उसको ठीक समझे वही बात ठीक रहेगी। How are you today? This Subhash Chandra show, I don't know if any one of you have seen before, but it has completed 140 sessions, almost 100 institutions like your premier institute, D.Y. Patil, across the country in 110 institutions of 20 states of India. There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? We were researching on this show for last 1.5 years, met with a lot of scholars, lot of professors, lot of sages, even including Shankaracharya, and we got very, very different meanings of Dharma from many people. I don't know if many of you, if I ask you a question, if we ask 10 people this question here in this auditorium, I'm sure you will get different answers. Anybody wants to answer what is true Dharma? जिस काम के लिए आप बने हो, जो अंदर से आपको लगता है वो आपको करना है, that is dharma. Anyone else want to say? For me, dharma means the way of life. In that path of life from birth to death, I should not be for my own living. I should not be encroaching others' rights or others' this thing. So I have to live a life by taking care of me. At the same time, I have to think of others. So I am not disturbing them So or you are harming saying them. live and let live. Exactly. Is the Literally. meaning of dharma. Sure. Okay. Sir, according to me, dharma is karma. What you are born to do, that is what, if you do righteously, that is what dharma is for me. Karma is equal to dharma, Yes. according to you. Okay. Then dharma is living in the present moment. Living in the present moment. Okay, yeah. Full consciousness and awareness. Very good. If somebody asks you question and keep a blank, कर्म करो, फल की dash 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 मत करो. Is that coming on the screen? If you have to fill in the gap. हाँ, क्या बोलेंगे? Right. Yes. So it was easy for all of us because this is what we have been brought up with. But a lot of people have also again said this, that no, this is wrong interpretation of Lord Krishna's teachings. ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ भगवद गीता में. ऐसे लोग भी हमको मिले. And that has confused. They say कि इच्छा किए बिना कर्म कैसे करेंगे? यदि आपकी इच्छा नहीं होगी, if you are not desiring to do anything, तो how will you do that act? कहीं पे गीता में ये भी बोल दिया निष्काम कर्म योग, detachment of all the actions, whatever you do, don't be attached and be detached. So how is that possible? It's quite confusing. Let's see one more video on this. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. आम आदमी कहता है कि तू काम कर पर फल की इच्छा मत कर, पर इच्छा का तो शब्द ही नहीं है इसमें. तो इस वाक्य का ये अर्थ जो है बिल्कुल मूर्खों ने बना दिया. इसमें आया कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा पूरा अधिकार है. माँ फलेषु कदाचन, फल में नहीं है.
फल पर अधिकार नहीं है तेरा। This is another way to look at it. कि to do an action is in your control, but जो result होगा उसका, उसके ऊपर तेरा control नहीं है. This is what he is also a very big philosopher. So we have captured lots of people and lot of things. But now I will show you a video of our somebody you would love to meet and discuss. It is spirituality which gives us the discrimination to be able to choose the right perspectives, to be able to see situations in a certain way, which is most healthy and most healing to our hearts. Bhagavad Gita is not simply a philosophical treatise, but rather a call to action. Gita speaks about three kinds of karma. Karmano hyapi bodhavyam, bodhavyam cha vikarmana, akarmanascha bodhavyam gahana karmano. One desire conquered is more satisfying than 1,000 desires fulfilled. Please join me in welcoming Gaurang Prabhu. तो गुरु जी, हम बचपन से ही सुनते आए हैं गुरु का अर्थ जो है, जो हमें ज्ञान के रास्ते पर लेके जाए और जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए। आप तो एक इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, यहाँ पे तो आपके चारों तरफ गुरुजन हैं जो आपको शिक्षा देते हैं। और प्रभु, आपको हम गुरु मानकर अपने कन्फ्यूजन और जिज्ञासाएं आपके सामने रखेंगे, अगर आप आज्ञा दें तो। और आज हम बात करना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग और व्हाट वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ धर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ सुभाष चंद्र शो में निमंत्रण दिया गया। आज भारत में 70,000 अस्पताल हैं, लेकिन लगभग 20 लाख मंदिर हैं। और जब युवा पीढ़ी मुझसे पूछती है कि मंदिर क्या है, तो मैं कहता हूँ शरीर के दर्द को दूर करने के लिए अस्पताल, मन के दर्द को दूर करने के लिए मन का अस्पताल मंदिर। वाह। और इसलिए मंदिर में जो दवा मिलती है उसको कहते हैं मंत्र। तो आई फील दैट टुडेज यंग जनरेशन, although very closely connected to technology, are in fact very highly spiritual. And what is important is to create the right context, give the right communication, and then automatically there will be a deep connection. The mind will magnify the problem beyond its scope. The past is unchangeable, the present is unexpected, the future is unpredictable. This is the reality. But the mind creates all these expectations, and the gap between expectation and reality creates stress and anxiety. What is the difference between current modern education and the knowledge and the ancient Sanatan Dharma wisdom? Everybody goes through problems. Everybody goes through difficulties. How many of you have faced problems and difficulties? Raise your hand. Yeah, everyone. So देखिए, problem can be solved, difficulties can be managed, and that's what modern education is trying to teach us. All the skills required to solve problems and manage difficulties. But there is another category which is beyond problem and difficulty. It is called crisis and calamity. A son failing in exam is a problem. A son not getting admission through Vandana ji's very strict admission procedure may be difficulty. But the son suddenly dying because of an accident, because of a disease, is a crisis, it's a calamity. Yeah. He cannot be brought back. So, Guruji, what would you say that our minds, brains do function very differently in different scenario, in different environment? As I was, before you entered, came in, I was talking that the neuroscience tells us differently. Our mind function differently of everybody. We have two brains, left and right.
right brain mostly not being used. What you are talking 1.5 education is developing the right brain, but not there is education system that don't have place yet. Even the families have forgotten that thing. So how do we bring back, Guruji, that? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने. You know, people always ask me, why you are running so many temples? You want to bring everybody and make them part of the temple or what? सबको मंदिर में भर्ती करना चाहते हो क्या? एक स्टूडेंट को मैं प्रसाद दे रहा था. मैंने कहा लो प्रसाद लो. वो कहता है नहीं 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 मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा. मैंने कहा भाई क्या हो गया? प्रसाद मना करता हो, तुम पहला आदमी है, प्रसाद क्यों नहीं लोगे? बोलता मुझे डर लगता है इसको लूँगा तो मेरा भी हेयर स्टाइल आपके जैसा हो जाएगा. तो मैंने कहा भाई मंदिर हम इसलिए नहीं चला रहे जिससे आप मंदिर में भर्ती हो जाओ. हम इसलिए चला रहे हैं जिससे मंदिर में आके प्रेरणा लेके जाओ, आप अपने घर को मंदिर बना सको. वेरी गुड. और आपको अपने घर को मंदिर बनाना हो, उसके लिए 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं. 3 परिवर्तन आप घर में लाओगे तो घर मंदिर बनेगा. पहला, आपको अपने घर के अंदर मनन करना होगा. पहला कंपोनेंट क्या है? मनन. प्रतिदिन थोड़ा समय निकालो, प्रार्थना करो, मंत्र का जाप करो, मेडिटेशन करो. ये समझो मुझे अपने अहंकार से परे समझना है कि मैं आत्मा हूँ लेकिन कोई एक ईश्वर भी है. तो इसलिए गीता के अंदर 5 ही टॉपिक्स है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म. जब जीव को लगता है कि मैं ही प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर शोषण कर रहा हूँ, उसे कहते हैं भोगी. लेकिन जब वो समझता है कि नहीं, मैं सब कुछ प्रयास करके भी बहुत कुछ मेरे इच्छा के विपरीत हो रहा है, तब ऊपर देखता है, तब समझता है कि ऊपर से कोई ईश्वर तत्व है. जी. तो जब ईश्वर के साथ जीव जुड़ता है उसको कहते हैं योगी. तो इसलिए घर पर जब मनन करना शुरू करोगे प्रतिदिन सुबह, तो ये पहली प्रक्रिया है. दूसरा, आपको करना है चिंतन. कैसे? गीता लीजिए, भागवत लीजिए, कितने ग्रंथ हैं हमारे, उन ग्रंथों को पढ़िए. जैसे सर बता रहे थे केस स्टडी मेथड. पुराण क्या है? केस स्टडी है. रामचंद्र जी कल राजा बनने वाले हैं, आज उनको घोषणा मिल गई कि वनवास. सोचो आज का व्यक्ति तो आत्महत्या कर लेगा कि कल प्रमोशन होने वाला है, मालूम पड़ा और आज नौकरी से निकाल दिया. तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि भाई संपत्ति को बढ़ाओ और विपत्ति को घटाओ. इसी को चिंता कहते हैं. चिंतन करोगे तो समझोगे कि मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उससे कहीं गुना अधिक पूर्व काल में राम और कृष्ण और पांडवों इत्यादि ने बहुत कुछ झेल लिया. तो चिंतन करना आवश्यक है. इसलिए गीता पढ़ना आवश्यक है. मैं किसी एक सज्जन को गीता दिखा रहा था, लोकल ट्रेन में बेच रहा था गीता. वो गीता देख के कहता है ये गीता फ्री में है क्या? मैंने कहा नहीं, ये 70 रुपये की है. वो मुझे देख के कहता है कृष्ण ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, आप 70 रुपये क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा सर, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बंबई है, 70 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज है. तो पहला हो गया मनन, दूसरा है चिंतन, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आपका अन्न. जैसा अन्न वैसा मन. आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ दुरस्मृति, स्मृतिलम्बे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षा. तो इसलिए ये तीनों का जब समन्वय हम करेंगे तब, जैसे इन्होंने कहा, मानसिक शांति कैसे होगी? जब मन का वजन घटेगा, मन शेप में आएगा. बिना कसरत किए तो होता नहीं. तो वजन घटाना हो तो इनपुट पे भी ध्यान देना पड़ता है और थोड़ा आउटपुट भी करना पड़ता है. तो वैसे ही मानसिक रूप से कुछ व्यायाम करना आवश्यक है. ये गीता में बताया गया. जी गुरुजी, मंदिर में जाने का लाभ भी है. हमने एक स्टडी किया, उसके थ्रू ये एक्सपीरियंस हुआ कि मंदिर में जाके जब व्यक्ति अपनी समस्या उस भगवान, उस देवता या ईष्ट के सामने रखता है, मन के अंदर एक प्रकार की एक ऊर्जा आ जाती है कि हाँ, मैंने अपनी समस्या मेरे से अधिक बलवान और शक्तिशाली व्यक्ति को बता दी है, उसने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, तो मेरी ये समस्या हल हो जाएगी. और जहाँ पे आप whenever you
believe in something, your belief system, that works, and then the nature helps you. That is the help which we get from the temple. I've seen lots of people. So I'll just add to what sir has just said. What is prayer? मंदिर में जाते हैं, आप में से कितने लोग मंदिर जाते हैं? मंदिर या जो भी धार्मिक स्थलों में जाकर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का मूल अर्थ क्या है गीता के अनुसार, वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ। हम सभी के मन में भय उत्पन्न होता है, चिंता उत्पन्न होती है, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। मैं कहता हूँ चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर है। बिल्कुल गुरु जी। चिता मृत शव को मृत्यु के पश्चात एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जीवन भर क्षण क्षण जलाती है। क्षण तो चिंता बहुत खतरनाक है। तो इस चिंता और भय के पीछे मूल कारण क्या है? What is the root cause of fear? Change. Any change which is going to happen is going to cause fear. What kind of change? Change in identity against our expectation. शरीर को लेके अपनी आइडेंटिटी, मैं स्वस्थ हूँ, सुंदर हूँ, यौवन संपन्न हूँ। धन को लेके मेरे पास धन है, मैं यशस्वी हूँ, लोग मुझे स्वीकार करते हैं। करियर को लेके मेरा इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है। पति पत्नी को लेके मैं अच्छा जो है पिता हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छी पत्नी हूँ। ये सब जब भावनाएं बदलती हैं, इस परिवर्तन को लेकर जो अंदर भावना उत्पन्न होती है वो चिंता और भय का। आईसीयू में गया हूँ, लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे प्रमोशन नहीं मिला। जब हम देखते हैं कि ये सारे दिन भर में आइडेंटिटीज बदलने वाले हैं, एक आइडेंटिटी अपनी कभी नहीं बदलेगी। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा ईश्वर है। आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा। इसी को कहते हैं सनातन धर्म। तो प्रातःकालीन जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दिन भर में कितना भी परिवर्तन क्यों ना हो जाए 12 घंटे में, लेकिन मुझे पता है कि हमारा संबंध कभी बदलेगा नहीं, उस स्थायी भाव के साथ जब निकलोगे, प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। सो यू बिगिन द डे विथ प्रेयर and you go out with full confidence to face any kind of change, and that's the reason why people go to the holy places, and that's why the numbers are growing, because they realize what is that power I am getting, that things may change in my life but this relation will never change and no power can hinder that. Thank you. Very good. तो क्या गुरुजी इसीलिए कहते हैं क्या ही इज अ गॉड फीयरिंग पर्सन? ये क्यों कहते हैं? क्यों नहीं गॉड लविंग पर्सन कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। जब भी जिससे भी बात करो, हर एक आदमी सो एंड सो इज अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन। व्हाई गॉड फियरिंग? राइट। क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको? आपने जो पहला प्रश्न पूछा था, व्हाट इज धर्मा, जी, वो मेरा प्रश्न अभी है गुरुजी। तो ये जो प्रश्न से मैं कनेक्ट करूंगा, भगवद गीता में रियल डेफिनेशन धर्म की क्या है? ये धर्म और आपने जो अभी गॉड फियरिंग कहा, दोनों को मैं कनेक्ट करके एक आंसर दूंगा। जी जी बताए। तो नॉर्मली धर्मा को लोग कहते हैं एक्शन या ड्यूटी, बट धर्मा का भगवद गीता के अनुसार 3 पहलू हैं। 3 पहलू क्या हैं? पहला, प्यूरिटी इन प्रोक्लिविटी, हमारे अंदर प्रेरणाओं की शुद्धता। तो 4 स्तरों पे प्रेरणा होती है, मोटिवेशन या इंटेंशन। तो सबसे पहला इंटेंशन, जैसे सर ने कहा, फियर, मैं ये एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा इसलिए पढ़ाई करना है, फियर। दूसरा, नहीं मुझे बहुत तनख्वाह बढ़ जाएगी इसलिए मैं काम करूंगा, डिज़ायर। फिर उसके ऊपर सेंस ऑफ ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है चाहे कितनी भी पीड़ा हो। और चौथा, लव। लव का अर्थ क्या है? इन एवरी रिलेशनशिप देयर इज स्कैरसिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस, स्टिल द रिलेशनशिप कंटिन्यूज, दैट इज कॉल्ड लव। तो इसलिए प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर नौकरे विचार। निस्वार्थ सेवा, दूसरों को प्रेम देते हुए, उसको हम कहते हैं लव। तो इसलिए प्यूरिटी इन आवर प्रोक्लिविटी और इंटेंशन, दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी धर्मा, शुद्धता हमारे प्रेरणाओं में। सेकेंड एस्पेक्ट इज स्टेबिलिटी इन आइडेंटिटी। जैसे मैंने कहा, हमारी आइडेंटिटी बदलती रहती है। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु,
मेरा शरीर, मेरी पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा धन, सामाजिक स्वीकृति, मेरा करियर, ये 8 प्रकार के हमारी आइडेंटिटीज दिन भर ऊपर नीचे चलते रहते हैं। वी आर जगलिंग बिटवीन दीज 8 आइडेंटिटीज 24/7। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, भाई अर्जुन, आपका स्वभाव क्षत्रिय का है, स्वधर्म क्षत्रिय का है, लेकिन इन दोनों के सिवा एक स्वरूप है आत्मा का जो बदलता नहीं, जो मैंने अभी बताया। तो दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी इन आइडेंटिटी। सो व्हेन देयर इज प्योरिटी इन प्रोक्लिविटी, स्टेबिलिटी इन आइडेंटिटी, देन देयर इज कंसिस्टेंसी इन एक्टिविटी। तो ये तीनों पहलुओं को जोड़ो तब बनता है धर्म। और इसलिए आपने जो कहा लोग गॉड फियरिंग होते हैं, उनको समझना चाहिए फियर के आगे डिज़ायर है, उसके आगे ड्यूटी है, उसके आगे लव है। और यही बात को भगवान अर्जुन के सामने गीता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट अर्जुन का चल रहा था वो आंतरिक चल रहा था। इट वॉज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। दुर्योधन को देखा, अर्जुन को लगा समाप्त करूंगा। भीष्म को देखा, लगा अरे ये तो पितामह है, प्रेम करूंगा। द्रोणाचार्य को देखा, ये तो गुरु हैं, इनका सम्मान करूंगा। तो अर्जुन के 3 आइडेंटिटीज आपस में टकरा रहे थे, मैं योद्धा हूं, शिष्य हूं कि पोता हूं। तो ये 3 आइडेंटिटी आपस में युद्ध कर रहे थे। तो कृष्ण ने कहा पहले आंतरिक युद्ध को सुलझाओगे तभी बाहर के युद्ध में जीत सकते हो। इसलिए स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग गीता इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ कंपल्शन। And I am happy that sir has brought all of you here to inspire you in this direction. Thank you, sir. थैंक यू very much. थैंक यू गुरुजी। जैसे आपने कहा, सच कहा, और बड़ा गुरु की वाणी हमेशा सच होती है। जाहिर है कि हमारे मन में भी कुछ ना कुछ द्वंद्व चल रहा होगा। मेरे पास बड़े प्रश्न हैं अभी गुरुजी से पूछने के लिए, लेकिन आपके जो भी प्रश्न हो तो हाथ उठाएं, गुरुजी से पूछना हो। कुछ भी कन्फ्लिक्ट दिमाग में चल रहा हो तो पहले आप पूछिए। एक स्थित प्रज्ञ, जैसे भगवद गीता के बारे में आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो हम स्थित प्रज्ञ तो हो नहीं सकते, लेकिन उसके आसपास जाने के लिए सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है हमारे लिए, मतलब आम जनता के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ABCD फॉर्मूला। A फॉर एसोसिएशन। जब आपके पास सत्संग हो, सत्संग अर्थात जो उसी प्रकार के क्षेत्र में काम कर रहे हो। अभी देखिए सुभाष जी बिल्कुल अनुकूल सत्संग के अनुसार वस्त्र वगैरह पहन के आ गए, है कि नहीं? क्योंकि अभी हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं मानसिक शुद्धिकरण, आत्मविश्वास को बढ़ाने और जीवन में कैसे पर्पस लाएं और पर्सपेक्टिव को बदलें। तो पूरे विश्व में 2 ही श्रेणी के लोग हैं। दर्द तो हर एक के जीवन में है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू पेन, बट देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल, वन हु गो थ्रू पेन एंड द सेकेंड वन हु गो थ्रू पेन एंड नो द पर्पस बिहाइंड दैट पेन। राइट। So we have all gathered here in the right association to understand pain is there. Could there be a purpose behind that pain? आग लगी है, उस आग के अंदर मैं उंगली डालूं दर्द होता है, लेकिन दर्द के पीछे कारण है। अगर दर्द नहीं होगा तो मेरा उंगली वहीं पर पिघल जाएगा। दर्द होता है तो मैं उंगली खींच लेता हूं ना। तो इसलिए हमारे जीवन में भी जो दर्द होता है उसके पीछे कोई कारण है। तो इसको समझने के लिए अनुकूल सत्संग लगता है, एसोसिएशन। दूसरा बुक्स, B फॉर बुक्स। जो ग्रंथ को हम पढ़ेंगे उसमें विश्लेषण दिया गया है, ये मशीन इस तरह क्यों चल रहा है वो बताया गया है, समझाया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आए हो, यहाँ पर अलग अलग विषयों के बारे में बताया जा रहा है जिससे आप उसके बारे में गहराई से समझ पाओ। C फॉर कंटेम्पलेशन। You need quality time to contemplate all that you study. You have to have quality time to connect with the Paramatma and understand the biggest enemy I have is my own ego. Thinking that I am the proprietor, I am the controller, I am the enjoyer. लेकिन जैसे आप ऊपर देखते हो और समझते हो कि कोई है जो जैसे छोटा सा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ के कितना शक्तिशाली हो जाता है, उसको लगता है पूरे दुनिया को चुनौती दे सकता हूँ, वैसा आत्मविश्वास आ जाता है इसे कंटेम्पलेशन से। और चौथा D फॉर डाइट, जो पहले मैंने बताया
तो ये है ABCD फॉर्मूला, अपनाइए, देखिए कैसे आत्मविश्वास बढ़ता है आपका। मैं थोड़ा धारिष्ट लेके ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे अर्जुन के मन में ये द्वंद्व चल रहा था कि ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरुजी है, क्या दुर्योधन के मन में नहीं चलता होगा? वाई ही सो क्लियर टू विन द बैटल एंड किल द पांडवास? तो वो क्या स्टेट है? तो मैंने जैसे बताया 4 लेवल्स ऑफ इंटेंशन, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। तो दुर्योधन के मन में इतना तीव्र डिजायर था। दुर्योधन शब्द का अर्थ क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। योधन मीन्स फाइटिंग, दुर मीन्स गलत, जो गलत लक्ष्य के लिए हमेशा युद्ध में तत्पर रहे। वॉट इज दैट रॉन्ग कॉज? हाउ टू प्रोटेक्ट माई ईगो, हाउ टू मेंटेन माई नंबर 1 पोजिशन। दुर्योधन का अर्थ यही था। उसको लगता था कि मेरे ऊपर कोई न जाए, और पांडवों को देखकर इतनी ईर्ष्या होने लगी कि उनको लगा कि किसी भी अवस्था में पांडवों को हम लोकप्रिय होने नहीं देंगे। और तब युधिष्ठिर ने केवल 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन का बुद्धि कैसे चला? उसने कहा 5 गांव अगर युधिष्ठिर को दूंगा, युधिष्ठिर इतने नेक हैं, इतने धर्मज्ञ हैं, इतने लोकप्रिय हैं कि पूरी दुनिया आके वो 5 गांव में बस जाएगी। इसलिए 5 गांव क्या, उसको तो सुई के बराबर इतना जगह भी नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि गर्मी के मौसम में इतनी धूप पड़ती थी, दुर्योधन अपने ऊपर किसी को छतरी भी लेने अलाउ नहीं करता था। क्यों? उसको लगता था मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग छतरी। इस तरह का उसका अहंकार था। इसलिए टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दुर्योधन का मन पूरी तरह तमोगुण में, रजोगुण में बसा हुआ था, और उसके मन में यही अभिमान था, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूँ। समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं अहंकार का नशा। तो संस्कृत का श्लोक है, मधु क्लिवम च माधवी के कृते कर्म शुभाशुभे, है ना, भक्तानाम कर्मणाम चैव सूदनम मधुसूदन। अर्थात जब मधु का सेवन कोई करता है, मधु मीठा भी होता है लेकिन मधु मादक भी होता है। हनी इज स्वीट, हनी इज इंटॉक्सिकेटिंग। ईगो के भी ये 2 इफेक्ट हैं। अगर कोई हमारी स्तुति करता है, अरे क्या काम किया आपने, ओ यू आर द बेस्ट, अंदर ही अंदर बड़ा अच्छा लगता है। बाहर से बोलते हैं ओ नो 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 नॉट लाइक दैट, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है सही समझा इसने मुझे। और मादक, इंटॉक्सिकेटिंग। तो दुर्योधन had become intoxicated by his ego। और आप कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति को देखो, उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता है, उसको कोई डाउट ही नहीं रहता। वो ट्रक को आता हुआ देख के बोलेगा खत्म कर दूंगा, इस ट्रक को गिरा दूंगा। समझ रहे ना? बट दैट इज द इफेक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। सो दुर्योधन सो कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज कमिंग बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑफ हिज फॉल्स ईगो। गुरुजी, अभी आपने ABCD जैसे 4 बात बताए। एसोसिएशन सबसे पहला एक आपने एक मंत्र दिया, बड़ा अच्छा है। लेकिन आज के युग में गुरुजी, मुझे इस व्यक्ति से एसोसिएशन करूं कि इससे करूं कि इससे करूं कि इससे करूं, कितनी प्रकार की बातें हैं, उसको कैसे समझूं मैं? तभी तो मैं एसोसिएशन ठीक व्यक्ति से करूंगा, या सत्संग भी ठीक व्यक्ति से सुनूंगा, कुछ करूंगा। आज हम देखते हैं गुरुजी के आज एक एक मठाधीश के पास हजारों लाखों हजारों करोड़ की संपत्ति है। आज हमारे भारतवर्ष में आपने तो एक तरफ तो बताया 20 लाख मंदिर हैं, दूसरी तरफ अगर बिजनेस के रूप में मैं देखूं तो आज ये धर्म के नाम पर आज देश में कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए साल का व्यापार है। और बहुत से युवा ऐसा समझते हैं कि यार ये जो मठ बने हुए हैं ये सब हैं, ये सब बिजनेस हाउसेज हैं। वो भी इसलिए हो गए कि वो एसोसिएशन जो लोगों ने श्रद्धा से शुरू की, गुरुजी ने बता दिया कि अच्छा तुम ये कर लो, घर के बाहर एक जूता टंगवा दिया, कभी कुछ कर दिया, कुछ टोटका दे दिया, इससे ठीक हो जाओगे, इससे आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। वास्तव में होती नहीं है। तो धीरे धीरे श्रद्धा जो है वो ख़त्म होने लगी। उसमें एक प्रश्न उठता है कि मैं एसोसिएशन करूं, कैसे पहचानूं कि किससे एसोसिएशन करूं?
बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा सुभाष जी। तो सबसे पहले आपने पॉइंट उठाया था टेक्नोलॉजी वाला जी, और कैसे युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़ी हुई है और एक आकस्मिक आकर्षण भी है टेक्नोलॉजी के प्रति। सो आई वुड लाइक टू लिवरेज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी टू हेल्प द यूथ इम्प्रूव देयर डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, तो वहाँ भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें कि ये एसोसिएशन अच्छा है कि वो एसोसिएशन अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ नेचुरल इंटेलिजेंस। अच्छा, वो कैसे? ऑनलाइन में गीता एक सब्जेक्ट है अपने आप में, तो एक हो गया फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है ना, और दूसरा हो गया कोचिंग क्लास। तो मैथ्स और फिजिक्स सिखाने वाले कोचिंग क्लासेस हजारों चल रहे हैं जी, और मैथ्स और फिजिक्स अपने आप में सब्जेक्ट है। तो आज ऑनलाइन के ज़माने में कोचिंग क्लास तो चल रहे हैं फिजिकल, लेकिन साथ साथ किसी व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना हो तो बेसिक मैथ्स और फिजिक्स क्या है, ऑनलाइन में बहुत सी सुविधाएं हैं जहाँ आप बैठ के समझ सको और डिस्क्रिमिनेट कर लो। तो मैं कहता हूँ कि भाई किसी को भी आवश्यक नहीं कि वो मंदिरों में जाए या फिर इन सभी विभिन्न प्रकार के मठों में जाए, जब तक मन के अंदर पूर्णतः श्रद्धा उत्पन्न न हो। तो श्रद्धा का विकास करने के लिए आप गीता के इन 5 विषयों का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, और इसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, 5 टॉपिक है। प्रकृति नेचर, काल टाइम, कर्म एक्शन, जीव जो आत्मा है, और हम सबको नियंत्रण करने वाला ईश्वर है। तो हर धर्म का व्यक्ति ये 5 तत्व को मानेगा। अच्छा, आप पूछोगे अब मैं कहाँ समझूँ, कैसे करूँ? तो स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक जब लंदन पहुँचे तो उनको वहाँ पर ब्रिटिश एक रिपोर्टर ने कहा, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा, भाई अंग्रेज़ों ने 300 वर्षों से भारत से सोना चांदी हीरा मोती लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न भगवत गीता चुराना भूल के उसका होम डिलीवरी करने आया हूँ। तो उस दिन से आज तक इस्कॉन के भक्तों ने विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जाओ मत। अगर आपके मन में पूर्ण श्रद्धा न हो या शंका हो, गीता पढ़ो। अगर फिजिकल नहीं है तो इतने ग्रंथों के साथ साथ हम लोगों ने ऑनलाइन रिपोजिटरी फ्री एक्सेस सबके लिए एक चालू किया है, www.vedabase.io। इसमें सारे ग्रंथ एक साथ आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन फ्री। तो आप शांति से उसको पढ़िए, समझिए। विज्ञान है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, साइंस और फिजिक्स जैसा। श्रद्धापूर्वक जानिए, समझिए, फिर आप अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन तैयार कीजिए, जिससे कि आपको सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज हो जाए, तो आप समझ सको कौन सही दिशा में कह रहा है, कौन गलत दिशा में कह रहा है। एज रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यू हैव टू टेक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकमिंग अ रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर। क्योंकि मार्केट में तो बहुत कुछ है, लेकिन कंज्यूमर का भी अपना उत्तरदायित्व होता है कि वो समझे। तो इसलिए आपका भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि आप बेसिक्स को समझो, ये नहीं कि अंधाधुन कहीं पे भी चले जाओ, क्योंकि ये अपने आप में एक विज्ञान है और जो उस विज्ञान को सही तरीके से समझा रहा है उससे समझना आवश्यक है। ये आपने अच्छी बात कही गुरुजी, पर कभी कभी हम लोगों की बुद्धि तो लिमिटेड है इस विषय में, इसलिए कन्फ्यूजन होता है। पर फिर भी आपने जो कहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गुरुजी, अक्सर जैसा आपने भी कहा कि गीता में निष्काम कर्म योग की बात कही गई। आपसे आने से पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि जब किसी कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, या मेरी कोई इच्छा है इसलिए मैं वो कर्म कर रहा हूँ, तो निष्काम कर्म योग जो है बड़ा कंफ्यूजिंग बात है। बिज़नेस में भी मैं जब बिज़नेस करता हूँ तो कर्म ही है वो भी, लेकिन उसमें धन कमाने की इच्छा होती है, साथ में ये भी इच्छा होती है कि अपने परिवार का भी पालन पोषण करूँगा। मेरे पास 5,000 8,000 लोग 10,000 लोग काम करते हैं मेरे बिज़नेस में, उनका भी लालन पालन पोषण होगा। तो ये निष्काम कर्मयोग की चीज़ को बहुत से लोग, मैं आपको अभी वीडियो दिखाऊंगा, उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं। ज़रा देखिए एक वीडियो। देखा जाए तो ये प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि आजकल जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ
फल से ही होता है। हमें अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल जो देंगे वो प्रभु श्री कृष्ण ही देंगे। किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन अगर ना रखें तो हम लोगों को दुख भी कम होगा, अगर उससे कम मिले तो रियल लाइफ में ये असली कह सकते हैं। अगर आप सरेंडर कर सकते हैं और उस बात को समझते हैं तो आपके जो पिछले जन्म के कर्म है ना, उसके भी बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। काम ज़्यादा ज़रूरी है, फल तो बाद में भी मिल जाएगा। तो जब तक कर्म नहीं करेंगे जब तक फल नहीं मिलेगा। अलग अलग बातें गुरुजी लोग कह रहे हैं। सही बात। तो आप थोड़ा बताएं कि ये निष्काम कर्म योग कितना प्रैक्टिकल है आज के युग में। हमें तो कठिन लगता है हमारी लिमिटेड छोटी बुद्धि में। जब किसी को ये पता पड़े कि मैं कुछ करूं तो उससे मुझे लाभ मिलेगा तो क्यों ना करे, या वो लाभ लेना चाहता है इसलिए वो कर्म कर रहा है। अगर हम ये सिद्ध कर दें कि निष्काम कर्मयोग करने से मुझे अंततोगत्वा लाभ मिलेगा तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा, है कि नहीं जी। निष्काम कर्मयोग इज़ फाइनली प्रॉफिटेबल अगर मालूम पड़े, क्योंकि 365 डेज़ का अपना चलता है बैलेंस शीट, तो ईयर एंड में अगर प्रॉफिट वो दिखाने वाला है तो बीच में ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं अगर मालूम पड़े कि अंत में अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट में होने वाला है। उसी प्रकार निष्काम कर्मयोग से क्या प्राप्त होता है, गीता में भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगम उच्यते। तो कह रहे हैं एक है कर्म एक्शन और दूसरा है योग। तो जब हम कर्म योग की बात करते हैं, योग के अंदर 5 पहलू बताते हैं। पहला है एक्शन कर्म, दूसरा है नॉलेज ज्ञान, तीसरा है रिनंसिएशन वैराग्य, चौथा है मेडिटेशन ध्यान, पांचवा है डिवोशन भक्ति। ये 5 पहलू को लेकर जब हम कोई कार्य करते हैं तब वो कार्य कर्म नहीं रहता, वो योग बन जाता है। अब आप कहोगे तो फिर मेरे जीवन में इसका परिणाम क्या होगा? तो आप में से कितने लोग सुख और संतोष की कामना करते हैं? हाथ उठाइए, है कि नहीं? सुख और संतोष, ठीक है। तो एक होता है प्राप्ति संपत्ति और दूसरा है सुख और संतोष। तो भगवान कह रहे हैं जब प्राप्ति और संपत्ति के साथ साथ अगर आप ज्ञान वैराग्य ध्यान और भक्ति को जोड़ोगे तो प्राप्ति और संपत्ति कहीं दूर नहीं जा रही, प्राप्ति और संपत्ति मिलेगी रहेगी, लेकिन साथ साथ आप सुख और संतोष को भी जीवन में जोड़ लोगे। तो इसलिए स्वाद एक आइटम होता है और तुष्टि एक दूसरा अनुभव होता है। तो इसलिए जब सर यहाँ कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग हम क्यों करें, वो इसलिए करें जिससे कि प्राप्ति और संपत्ति उसमें कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन जब हम ये 4 बातों को जोड़ेंगे, ज्ञान वैराग्य ध्यान और भक्ति को कर्म के साथ जोड़ेंगे, तब साथ में 2 और बेनिफिट मिलेगा, सुख और संतोष। अब आप में से कितने लोग हैं जो सुख और संतोष चाहते हैं? हाथ उठाइए। वो तो सभी चाहते हैं गुरु। तो सुख और संतोष चाहते हैं तो निष्काम कर्मयोग करने से सुख और संतोष फ्री गिफ्ट के रूप में मिलता है। तो कितने लोग निष्काम कर्मयोग करना चाहेंगे? हाथ उठाइए। ये देखिए प्रूव हो गया ये। धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहें। लेकिन गुरुजी जैसा आपने सनातन की परिभाषा बताई उससे मैं भी सहमत हूँ, मुझे लगता है कि सब लोग सहमत हैं गुरुजी। लेकिन कुछ समय पहले तक जैसे जो कुछ हमने पढ़ा है शास्त्रों में, कहीं पे मंदिर या मूर्ति पूजा इत्यादि का जिक्र नहीं आता है, कई जगह काफ़ी जगह। लेकिन आज एक ऐसा वातावरण बन गया कि मंदिरों में पूजा करना ही उसको इक्वल टू सनातन धर्म मान लिया गया। इसको आप सही मानेंगे कि उसमें कुछ मतभेद या किंतु परंतु है आम भाषा में? करेक्ट। बेसिकली सनातन धर्म की परिभाषा यही है कि जीव सनातन है, ईश्वर सनातन है। जीव और ईश्वर के बीच जो संबंध है
वो सेवा का संबंध भी सनातन है। उस संबंध को स्थापित करने के लिए 9 तरीके श्रीमद् भागवत पुराण में दिए गए हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 में एक है अर्चनम, जो कि अर्च विग्रह की आराधना। तो इन 9 में से अगर अर्च विग्रह की आराधना में आपकी श्रद्धा है और आप भगवान के साथ, ईश्वर के साथ अपने संबंध को, सनातन स्थायी संबंध को स्थापित करने के लिए अर्च विग्रह की आराधना के माध्यम से जाना चाहो, अच्छी बात है। श्रवणम, श्रवण करके, जैसे परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया। वंदनम, भगवान के सामने प्रार्थना, या आप एक जगह बैठकर प्रार्थना कीजिए। तो ये सभी तरीके वंदनीय हैं, ये सभी उचित हैं, बोनाफाइड हैं। लेकिन क्योंकि शिक्षा प्रणाली में और जन सामान्य में एक स्टैंडर्डाइज सिलेबस सनातन धर्म को लेकर नहीं है, जागरूकता कम है और इतनी विविधता को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इस सब्जेक्ट को समझने के बदले सब लोग मंदिरों में जाके उनको लगता है कम से कम कुछ तो मैं करूं और कम से कम हाथ जोड़कर प्रार्थना तो कर लूं। तो 9 में से उसी को ही 9 की 9 मान लिया। क्योंकि क्या करें, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आप दोगे लोगों को समझने के लिए, तो आपके पास इतना मीडिया का चैनल है, इस मीडिया के माध्यम से आप गीता, भागवत, पुराण, इन सब की शिक्षाओं को सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करने के लिए और कोर्सेस आरंभ करेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। तो जितना लोग समझेंगे उतना ज़्यादा ये हर प्रकार के विधि विधानों के प्रति आकर्षित होंगे, क्योंकि भारत में सभी लोग बुद्धिमान हैं, जागरूक हैं, आस्तिक हैं और सब कुछ जानना चाहते हैं। जितना फैसिलिटी देंगे उतना दे विल बी लाइक अ फिश कमिंग बैक टू वाटर। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत मैं आभारी हूँ एंड आई कंग्रेचुलेट यू कि आप इतना पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए, ज्ञान स्प्रेड करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठस तत्तत एवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। जैसे समाज के प्रतिष्ठित लोग करेंगे, सामान्य व्यक्ति भी वैसे करेंगे। तो बिजनेसमैन अगर इस प्रकार धर्म में रुचि लेंगे, धर्म के प्रचार में सहायक बनेंगे, निमित्त बनेंगे, बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हो। आई कंग्रेचुलेट यू फॉर यूजिंग दिस मीडिया फॉर दिस पर्पस। दोस्तों, हमने 3 कड़ी में धर्म का सच जानने का प्रयास किया, लेकिन इन तीनों अलग अलग बातें हमको 3 प्रकार के वक्ताओं ने हमको बताया। तो मेरा तो अभी यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो अपना प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन करना वो धर्म है, और धर्म सार्वजनीन है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रार्थना की पद्धति को अपनाता हो, लेकिन धर्म तो एक ही है। और इसीलिए धर्म को सनातन कहा। सनातन कोई केवल धर्म हिंदुओं की बपोती नहीं है, और भारत के और विश्व के हिंदू समाज को, अन्य सभी धर्मों को मानने वाले लोगों से ये कहना चाहिए कि भाई आप आइए, धर्म सनातन है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, ना कि एक दूसरे का विरोध करें। तो ये दुनिया में सबके लिए लाभदायक होगा। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।